کہانی شروع ہوتی ہے جنگل کے درمیان ایک چھوٹے سے خوبصورت گھر سے، جس میں 10 سالہ ایلا اپنی بہت ہی پیاری فیملی کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہوتی ہے کہ اچانک ایک روز ایلا کی ماں بیمار ہو جاتی ہے اور جلد ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ وفات سے پہلے ایلا کی ماں ایلا سے یہ عہد لیتی ہیں کہ ان کے بعد بھی ایلا نوکروں سمیت سبھی کے ساتھ ماں ہی کی طرح ہمدردانہ اور اپنائیت والا تعلق نبھائے گی اور زندگی میں آنے والی ہر مشکل کا بہادری سے سامنا کرے گی۔ ایلا کی مام کی وفات کے بعد ایلا اور اس کے والد کے لیے تو ظاہر ہے بہت کچھ بدل جاتا ہے، تاہم وہ حقیقت کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وقت گزرتا رہتا ہے اور ایلا جوان ہو جاتی ہے۔ تب ایلا کے والد ایک بیوہ عورت ٹری مین سے شادی کر لیتے ہیں، جس کے ساتھ اس کی 2 بد تہذیب قسم کی بیٹیاں ڈریزیلا اور اناستاسیا بھی ہوتی ہیں۔ ایلا کو یہ سب کچھ عجیب تو لگتا ہے، مگر وہ والد کی خوشی کے لیے اور اپنی ہمدردانہ فطرت کے باعث انہیں قبول کر لیتی ہے۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ٹری مین گھر پہنچتے ہی ایک پارٹی کا اہتمام کرتی ہے، جس میں ایلا اچھا فیل نہیں کر رہی ہوتی تو وہ اپنے پالتو جانوروں کے پاس چلی جاتی ہے۔ اگلے سین میں جب ایلا صبح والد کے پاس جاتی ہے تو وہ اسے بتاتے ہیں کہ کل انہیں کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا ہے۔ اسی بات چیت کے دوران دونوں باپ بیٹی جذباتی ہو جاتے ہیں، جبکہ ٹری مین بھی باہر کھڑی چوری چوری سب کچھ دیکھ اور سن رہی ہوتی ہے۔ باپ بیٹی کی محبت پر وہ جیلس ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ جو پیار اسے ملنا چاہیے تھا وہ تو سارا ایلا کو مل رہا ہے۔ اگلے روز جب ایلا کے والد صبح جا رہے ہوتے ہیں تو ساری فیملی انہیں گیٹ پر الوداع کرنے آتی ہے، تو وہاں بھی باپ بیٹی کی افیکشن واضح ہوتی ہے۔ ایلا کے والد کے جاتے ہی ٹری مین اپنے گھٹیا رنگ دکھانے لگتی ہے اور ایلا سے کہتی ہے کہ وہ اپنا کمرہ اس کی بیٹیوں کو دے دے اور خود بالا خانے میں چلی جائے، تو ایلا بالا خانے میں چلی جاتی ہے۔ وہ زیادہ وقت وہیں اپنے پیٹس کے ساتھ ہی دل بہلاتی ہے اور خود کو اس بات پہ مطمئن کر لیتی ہے کہ نیچے کی طرح یہاں بار بار اسے سوتیلی ماں اور بد تہذیب سوتیلی بہنوں کے منہ نہیں لگنا پڑے گا، مگر یہ اس کی معصومانہ خواہش ہی ہوتی ہے، کیونکہ ٹری مین اور اس کی بیٹیوں نے تو ایلا کو ذلیل کرنے کا منصوبہ بنایا ہوتا ہے۔ تو وہ بظاہر میٹھے انداز میں مگر در حقیقت اس سے نوکروں والے کام کروانے لگتی ہیں۔ اگلے سین میں تو ایلا کی ساری دنیا ہی اندھیر ہو جاتی ہے جب ایک نوکر آ کر ایلا کو اطلاع دیتا ہے کہ اس کے والد راستے میں ہی بیمار ہو گئے تھے، جس سے بالآخر ان کی وہیں وفات ہو گئی۔ یہ خبر ایلا کے لیے تو قیامت ہوتی ہے، ماں پہلے چلی گئی، اب والد بھی چلے گئے، یعنی اب تو وہ ڈائن قسم کی سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر ہوگی، تو کیسے سروائیو کرے گی، جبکہ سوتیلی ماں اور بہنیں سبھی اس کی دشمن ہیں۔ اگلے روز ہی ٹری مین پیسوں کی بچت کے لیے گھر کے سارے نوکروں کو فارغ کر دیتی ہے اور نوکروں کے سارے کام ایلا کے ذمہ لگا دیتی ہے۔ کپڑے دھونے سے لے کر گھر کی صفائی، کچن کے سبھی کام، کھانا بنانا وغیرہ وہ ایلا سے کرواتی ہے، جبکہ خود ایلا کو سب سے آخر میں بچا ہوا کھانا ہی ملتا ہے، جو وہ اپنے پیٹس کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہے۔ روز رات کو سیڑھیاں چڑھ کر سونے کے لیے اوپر بالا خانے تک جانا، جبکہ سردی بھی زوروں کی ہوتی ہے، ایلا کو مشکل لگتا ہے، تو وہ کچن میں ہی آگ کے پاس فرش پر ہی سونا شروع کر دیتی ہے۔ صبح جب وہ اٹھتی ہے تو اس کے چہرے پر کوئلے کی راکھ کے سنڈرز یعنی کالے نشان پڑے ہوتے ہیں، جنہیں دیکھ کر سوتیلی ماں بیٹیاں اس کا نام تنزن سنڈریلا رکھ دیتی۔ انہی پریشانیوں میں ایک روز ایلا گھر سواری کرتے ہوئے دور جنگل میں جا نکلتی ہے، جہاں وہ ایک باراسنگا دیکھتی ہے جس کے پیچھے ایک شہزادہ اور اس کے نوکر شکار کرنے کو آتے ہیں۔ تو ایلا انہیں دیکھ کر باراسنگا سے کہتی ہے کہ بھاگ جاؤ، تو اس کا اپنا گھوڑا بھی بے قابو ہو کر بھاگنے لگتا ہے۔ شہزادہ یہ دیکھ کر اس کی مدد کو آتا ہے اور پھر اسے اپنا تعارف کٹ کے نام سے کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ شاہی محل میں سرونٹ ہے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں اور پھر ایلا وہاں سے چلی جاتی ہے، جبکہ اس نے اپنا نام تک بھی شہزادے کو نہیں بتایا ہوتا۔ اگلے سین میں جب شہزادہ محل پہنچتا ہے تو بادشاہ کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہوتی ہے۔ بادشاہ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب اس کے پاس وقت کم رہ گیا ہے، اس لیے وہ شہزادے سے کہتا ہے کہ وہ اگلی رائل بال پارٹی میں اپنی دلہن کے لیے کسی شہزادی کا انتخاب کر لے، تاکہ میں اپنی ذمہ داریاں تمہارے ذمہ کر کے فارغ ہو جاؤں۔ تو شہزادہ اپنے والد یعنی بادشاہ سے درخواست کرتا ہے کہ اس رائل بال میں شہر کی ساری کنواری لڑکیوں کو بلانا چاہیے، اس امید پر کہ شاید ایلا بھی وہاں آ جائے۔ تو بادشاہ اس کی بات مان جاتا ہے اور یوں امیر و غریب تمام شہریوں کو رائل بال کی دعوت دے دی جاتی ہے۔ ادھر ایلا بھی بازار میں یہ خبر سن لیتی ہے اور گھر پہنچ کر ٹری مین کو بتاتی ہے اس امید پر کہ وہ بھی ان کے ساتھ جائے تو شاید کٹ سے ملاقات کا موقع مل جائے، لیکن ٹری مین تو ایلا کو بالکل ہی نظر انداز کیے بس اپنی بیٹیوں کو ہی تیاری کروانے لگتی ہے، اس لالچ میں کہ کیا خبر انہی کی ایک بیٹی شہزادی بن جائے تو ان کی زندگی جنت بن جائے گی۔ دوسری طرف شہزادہ بھی ایلا کے خیالوں میں اس قدر گم ہو چکا ہوتا ہے کہ اسے اور کچھ یاد ہی نہیں ہوتا، ساتھ میں یہ خوف الگ کہ اگر ایلا آ بھی گئی تو
तो न जाने बादशाह उसे कबूल भी करेगा या नहीं, क्योंकि बादशाह की तो यही ख्वाहिश होती है कि शहजादा किसी शहजादी को ही दुल्हन बनाए। एला की सुतेली वालदा रायल बाल के लिए एला को कोई लिबास खरीद कर नहीं देती। ताहम एला अपने तौर पे किट से मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड होती है कि खुद ही बालाखाने में अपनी माँ के एक ड्रेस से अपना ड्रेस तैयार कर लेती है। बिलाखिर रायल बाल की रात आ पहुँचती है, जब ट्रीमैन अपनी बेटियों को सजा संवार कर रायल बाल पे जाने को तैयार खड़ी होती है, तो एला भी अपनी माँ वाला ड्रेस पहने आ जाती है। ट्रीमैन और उसकी मनहूस बेटियां ये देखकर एला की बहुत बेइज्जती करती हैं, हत्ता कि ट्रीमैन उसका ड्रेस ही फाड़ डालती है ताकि एला रायल बाल पे जा ही ना पाए। इसके बाद वो माँ बेटियां रायल बाल के लिए निकल जाती हैं, जबकि एला अफसुर्दगी के साथ उन्हें जाता देखती रह जाती और बाहर वाटर पॉन्ड के पास आकर रोने लगती है। फिर वो भागकर पिछले बाग में जाती है, जहाँ उसे एक बूढ़ी बकारन मिलती है। एला उसे दूध का प्याला देती है तो वो ट्रांसफॉर्म होकर एक खूबसूरत औरत के भेस में बदल जाती है और एला से कहती है कि मैं तुम्हारी फेरी गार्ड मदर हूँ। ये फेरी गार्ड मदर अपनी जादुई ताकतों से पंपकिन को कैरेज में बदल देती है, चूहों को घोड़ों में, लिजर्ड को फुटमैन और गूस को कोचमैन में बदल देती है, ताकि शाही महल में जाने के लिए जबरदस्त सवारी तैयार हो जाए। इसके बाद वो एला के ड्रेस को भी ट्रांसफॉर्म करके इंतहाई खूबसूरत बाल गाउन में बदल देती है। इसके बाद जब एला पालकी में सवार होने लगती है तो फेरी गार्ड मदर उसके सैंडल देखकर कहती है कि ये भी ठीक नहीं, और फिर उन्हें भी शीशों के जूतों में बदल देती है। अब एक मसला बाकी होता है एला की सुतेली माँ का, तो इसके लिए भी गार्ड मदर एला पर स्पेल कास्ट कर देती है ताकि एला की सुतेली फैमिली उसे रायल बाल में पहचान ही ना पाए। आखिर में चलते वक्त वो एला को बताती है कि स्पेल का असर रात 12 बजे तक ही रहेगा। इसके बाद एला अपनी असल हालत पर लौट आएगी, लिहाजा उसे रात 12 बजे से पहले वहाँ से निकल आना होगा। अगले सीन में एला शाही महल के लिए निकल जाती है। उधर रायल बाल पर मुख्तलिफ बादशाहतों की शहजादियाँ और सारे शहरी पहुँच चुके होते हैं, ताहम अभी तक वो चेहरा कहीं नजर नहीं आ रहा होता जिसका शहजादे को इंतजार होता है। इसी सबब शहजादे के चेहरे से भी बेचैनी आया होती है, जिसका अंदाजा बादशाह को भी हो जाता है। तो शहजादा बादशाह के सवालों से बचने के लिए एक शहजादी को बुलाकर उससे बातें करने लगता है। रायल बाल की तकरीब शुरू होने ही वाली होती है कि एला भी पैलेस में इंटर हो जाती है, तो सारी नजरें एला की तरफ उठ जाती हैं और सभी एला को देखते रह जाते हैं। शहजादे की तो जैसे जान में जान आती है और बेताबी से एला से मिलने को उसकी तरफ बढ़ता है। सभी लोग साइड पे होकर उन दोनों के लिए रास्ता छोड़ देते हैं। एला के लिए तो अभी भी उसका महबूब किट शाही नौकर ही होता है, तो वो उससे मिलकर जहाँ खुश हो रही होती है, साथ में हैरान भी होती है कि ये सभी लोग उन्हें ही क्यों देख रहे हैं। किट उससे कहता है कि ये सभी लोग तुम्हें और तुम्हारे हुस्न को देख रहे हैं। इसके बाद वो दोनों डांस करने लगते हैं। ये वो जादुई लम्हात होते हैं जब एक काम सी गुमनाम लड़की एक शहजादे के साथ उसकी मलका बनने की तकरीब पे शाही महल में डांस कर रही होती है, तो सभी नजरें उसी पे टिकी होती हैं। एला की सुतेली माँ ट्रीमैन गो एला को तो नहीं पहचान पाती, मगर लड़की कोई भी हो उसकी जेलसी तो बनती है। सो वो जल भुनकर अपनी बद तहजीब बेटियों को कोसती है और उन्हें भी डांस के लिए भेज देती है। अगले सीन में डांस के बाद शहजादा एला को अपने महल में ले जाता है, जहाँ एला पे ये राज खुलता है कि किट दरअसल शहजादा है, जिस पर वो हैरानगी का इजहार करती है। ताहम किट उससे माजरत करके उसे राम कर लेता है। दूसरी तरफ महल में सभी हैरान होते हैं कि आखिर ये नामालूम लड़की है कौन, जिसे कोई भी नहीं जानता कि आखिर ये कौन है, कहाँ से आई है। उधर शहजादा एला को झूले पर बिठाता है तो एला का एक सैंडल उतर जाता है, तो शहजादा नीचे बैठकर खुद एला को सैंडल पहनाता है। शहजादा एला से उसके बारे में पूछने ही लगता है कि एला को एहसास होता है कि रात के 12 बजने वाले हैं, तो वो खौफ के मारे शहजादे से मजीद बात किए बगैर ही वहाँ से भाग खड़ी होती है। किट भी उसके पीछे भागता है। महल से निकलने से पहले एला बादशाह से मिलती है और उसे कहती है कि आपका बेटा बहुत अच्छा इंसान है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। बस इतना कहकर एला महल से भाग निकलती है और बादशाह उसे देखता और सोचता ही रह जाता है। अगले सीन में दौड़ते हुए महल की सीढ़ियों से उतरते एला का एक सैंडल पाँव से निकल जाता है। वक्त कम होता है जबकि शहजादा भी भागता उसके पीछे आ रहा होता है, तो एला वो सैंडल वहीं छोड़कर अपनी पालकी में बैठ जाती है। शहजादा उसका सैंडल उठा लेता है और उसके पीछे जाने लगता है, मगर ग्रैंड ड्यूक उसे रोककर खुद सिपाहियों को लिए एला के पीछे निकल पड़ता है कि तभी रात के 12 बज जाते हैं और सब कुछ तब्दील होने लगता है। तो लिजर्ड सिपाहियों को रोकने के लिए पैलेस का गेट बंद कर देता है। यूं सिपाही पीछे रह जाते हैं और इधर ये सभी अपनी असली हालत में लौट आते हैं, सिवाय एला के एक सैंडल के, जिसका दूसरा पाँव शहजादे के पास रह गया होता है। दूसरी तरफ महल में बादशाह की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो भी हर अच्छे वालिद की तरह अपने बेटे के लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं जिससे उसके बेटे को खुशियाँ मिले और उसकी जिंदगी खुशगवार हो। तो वो शहजादे को इजाजत दे देते हैं कि उनकी पसंद की बजाय
शहजादे को अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेनी चाहिए और ये कि जितना जल्द मुमकिन हो उस लड़की को ढूंढो। मगर इतना कहते ही बादशाह की वफात हो जाती है। अगले सीन में किट नया बादशाह बन जाने के बाद ये ऐलान करवा देता है कि वो लड़की अपना दूसरा सैंडल बादशाह को दिखाए और फिर अगर वो राजी हुई तो बादशाह उससे शादी कर लेगा। ये सुनकर एला खुशी खुशी घर की तरफ भागती है और बाला खाने में वो सैंडल ढूंढने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि वो सैंडल तो ट्रीमैन ने वहाँ से निकाल लिया है। ट्रीमैन एला से कहती है कि वो एला को बादशाह से इसी सूरत में शादी करने देगी कि वो उन्हें भी अपने साथ शाही महल ले जाए और उसकी बेटियों की शादियां भी महल के नोबल आदमियों से करवाने का वादा करे। मगर एला इनकार कर देती है तो ट्रीमैन एला को बालाखाने में ही बंद करके सैंडल अपने साथ ही ले जाती। अगले सीन में ट्रीमैन सैंडल का छोटा सा हिस्सा तोड़कर ग्रैंड ड्यूक के पास लाती है तो वो उसकी बेटियों की शादी करवाने के लिए मान जाता है, इस शर्त पर कि वो एला को हमेशा छुपा कर ही रखेगी। तो ट्रीमैन कहती है ठीक है। अगले सीन में ग्रैंड ड्यूक सैंडल का टुकड़ा बादशाह को दिखाता है और झूठ बोलता है कि वो लड़की जानबूझकर खुद को छुपा रही है। ताहम किट कहता है कि कुछ भी हो वो उस लड़की को ढूंढ कर ही दम लेगा। तो ग्रैंड ड्यूक उससे ये वादा लेता है कि अगर वो लड़की ना मिली तो किट को उस शहजादी से शादी करना होगी जिसे उसके वालिद ने अपने मरने से पहले किट के लिए पसंद किया था। तो किट कहता है कि ठीक है। अगले सीन में ग्रैंड ड्यूक किट को महल में ही रुकने का कहता है और खुद सिपाहियों को लिए अपनी किंगडम की गली गली जाकर हर लड़की को वो सैंडल पहनाकर चेक करता है, मगर किसी को भी वो सैंडल पूरा नहीं आता। आखिर में वो लोग एला के घर पहुंचते हैं जहां एला की सौतेली बहनों को वो सैंडल पहनाने के लिए तो जी जान का जोर लगाते हैं, मगर उन्हें भी वो सैंडल नहीं आता कि तभी एला का एक पालतू चूहा बाला खाने का दरवाजा खोल देता है तो एला के गाने की आवाज बाहर आने लगती है। तो कैप्टन उस लड़की को बुलाने को कहता है, मगर ट्रीमैन कहती है कि ऊपर कोई नहीं है। ग्रैंड ड्यूक भी वापस जाने पर जोर देता है कि तभी किट जो सिपाही के भेस में इस सारी तलाशी मुहिम में उनके साथ था अपना हेलमेट उतार देता है तो सारे फराडियों की मां मर जाती है। किट हुक्म देता है कि उस लड़की को नीचे ले आए तो कैप्टन जाकर एला को नीचे ले आता है। बादशाह किट एला को वो सैंडल पहनाते हुए शादी के लिए प्रपोज करता है और फिर एला को लिए शाही महल के लिए निकल पड़ता है। ताहम एला जाने से पहले अपनी सौतेली माँ और उसकी बेटियों को उनके मुजालिम पर माफ कर देती है। अगले सीन में सारी किंगडम के सामने उनकी धूमधाम से शादी हो जाती है और वो हंसी खुशी रहने लगते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। मजीद ऐसी ही अच्छी मूवी स्टोरीज के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।